Hello everyone, good morning and yes, welcome back to another vlog and another video. I am so sorry that I was not able to shoot any kind of video because I was not feeling well from past 4 to 5 days. Also, I hope you guys are doing well with your health and as well as your body. So in today's vlog, I will be explaining you a little bit about some mistakes I did in my fitness journey and also would like to acknowledge you a little bit which will help you in starting your fitness journey as well. Also, I'll be going to show you some tidbits of a day in my life, so stay connected until the end of this video. So today I'm going to tell you 5 mistakes that I did while starting my fitness journey, and also I got some coffee because I need energy in order to describe so much. Also, I would like to tell you that I do not have charge on my mic, so that's why I have to put the charger along with the mic in order to speak with you. Every person wants to lose weight, right? तो weight desperation की वजह से हम लोग को पता नहीं होता है कि पहले शुरू कैसे करें, and I hope this will be helpful for you. Any person who wants to start their fitness journey. For me, I had no guidance, बट आई होप कि मेरी जो नॉलेज है उसकी वजह से आपको थोड़ा सा गाइड मिले और थोड़ा गाइडेंस की वजह से आप अच्छे से अपना फिटनेस जर्नी लेके जा पाओ, जिसमें आपको सस्टेनेबल रिजल्ट मिले रेदर देन गेटिंग इमीडिएट रिजल्ट्स एंड बाद में फिर से वापस वेट गेन हो जाना. So this is the first part, so I'll make a second part as well. So do not forget to subscribe my channel so that you get to see the second part of it as well. As you guys already know, and if you don't know, I was a lifestyle coach. I still am a lifestyle coach, but I have switched a little bit of my career to another field as well. But still, I am always happy to guide everyone, and I'm always happy to acknowledge everyone what I have learned in these past years. So the first mistake every person makes is eating less. Every person has that thing in their mind that if they eat less they will start losing weight fast, but no, that's a very false myth that everyone tells to each other कि आप कम खाओ तो आपका weight loss हो जाएगा. That's like danger. So any person who weighs around 90 to 100 kg, they tend to lose weight easily because they have water retention in their body. Our body is composed of muscles, fats and water as well. So इन दिस ट्री कॉम्पोजिशन जो वाटर वेट होता है वो बहुत जल्दी गिर जाता है. तो अगर आपका 100 kg है तो आपका चांसेस रहता है कि यू कैन लूज वेट अराउंड 5 to 10 kgs वेरी इजीली. एंड देन आफ्टर द वाटर रिटेंशन गोज अवे फ्रॉम योर बॉडी, देन कम्स द डिफिकल्ट पार्ट जहाँ पर आपको फैट लॉस करना बहुत ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो आपकी बॉडी में वापस वाटर रिटेंशन होने के चांसेस रहते हैं. सो ईटिंग लेस इज नॉट अ सोल्यूशन. स्टार्विंग इज अ डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी. सो इफ यू स्टार्ट eating less and you starve your body will start taking it as a defense mechanism and use it against you. Fats are the main fuel of our body. हमारी बॉडी कैसे फंक्शन करता है फैट्स की वजह से, तो उसके हिसाब से आवर बॉडी टेंड्स टू गेन वेट ईजिली बिकॉज उनको फैट्स चाहिए होता है. तो उसकी वजह से कोई भी खाना होता है, कोई भी ऐसा हाई फैटी ऐसा हाई शुगर हाई कार्बोहाइड्रेट वाले हाई फैट्स वाले खाना होता है, तो बॉडी जितना हो सकता है उतना अपनी बॉडी के अंदर फैट्स रखते हैं ताकि वो बाद में बर्न कर सके एनर्जी के हिसाब से. तो जितना आप कम खाओगे उतना आपकी बॉडी ट्राई करेंगे फैट्स को रिस्टोर करने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए कि आपका वेट लॉस ज़्यादा जल्दी ना हो ताकि उसको एनर्जी मिलता रहे. तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ही लो हो जाएगा. यू वुड नॉट बर्न फैट मोर. वैसे भी मेल्स का कम बॉडी फैट परसेंटेज होता है और फीमेल्स का ज़्यादा होता है क्योंकि हम लोग बच्चा पैदा करते हैं ऑफ कोर्स. यस, सो प्लीज़ डू नॉट एवर कंपेयर योर सेल्फ टू एनी मेल बॉडी बिकॉज उनका बहुत अलग होता है. ईटिंग लेस विल इंक्रीज योर स्ट्रेस हॉर्मोन्स नेम दिस कॉर्टिसोल. सो इसका सोल्यूशन क्या है? हैविंग प्रॉपर न्यूट्रिशन डेंस फूड. सो एक प्रॉपर न्यूट्रिशन डेंस फूड का मीनिंग क्या है? उसमें फैट्स होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए और कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए. आई एम हैविंग दिस sunny sides up plus some palak as well as along with that I'm having some cheese along with the toast because of course after that I'm going to work out, so I need to have proper energy along with it. So, इन चारों को मैक्रोन्यूट्रिशन बोलते हैं. तो सबसे पहला टॉपिक आता है प्रोटीन. ठीक है, प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए क्योंकि अगर आप प्रोटीन नहीं लोगे तो आपकी बॉडी के अंदर मसल बिल्ड नहीं होगा और मसल बिल्ड नहीं होगा तो आपकी बॉडी के अंदर जितने भी फैट सेल्स है वो धकेंगे नहीं. मतलब आपको मैं अगर समझाने जाऊंगी, देखो ये 2 लेयर है. ठीक है,
ये मसल लेयर है, ये फैट्स लेयर है। आपकी बॉडी के अंदर मसल्स है पर आपके मसल्स बहुत कम है, उसकी वजह से फैट्स के लेयर बहुत ज़्यादा ही उसको कवर अप कर देते हैं। उसकी वजह से आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा फुला फुला लगता है और लोग इजीली वेट गेन करते हैं। तो जब भी आपका मसल का लेयर बढ़ जाएंगे तो आपकी जो फैट सेल्स है, फैट्स का लेयर है, वो ढक देंगे, मतलब ऐसे खींचते खींचते उसको टाइट करते जाएंगे। और प्रोटीन ये भी करता है आपकी बॉडी की मसल्स को रिपेयर करते हैं। जब भी आप वर्कआउट करते हो तो आपका जो मसल्स है उस टाइम टूटता है, मतलब वो यूज होता है, उसकी वजह से वो डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो प्रोटीन आपकी मसल्स को रिपेयर करेंगे वापस और उसको जोड़ देंगे। ऑल्सो प्रोटीन आपका जो हेयर है, आपका जो स्किन है वो अच्छा रखता है, हेयर ग्रोथ अच्छा होता है, स्किन का ग्लो अच्छा रहता है। साइड में देख सकते हो यहाँ पर पाम साइजेस दिखाया जा रहा है। तो प्रोटीन का पाम साइज है इतना, ठीक है। अगर आप हाथ पे ऐसे रख रहे हो तो इतना सारा प्रोटीन का इंटेक होना चाहिए। चाहे आप चिकन खा रहे हो, आप फिश खा रहे हो, आप पनीर खा रहे हो, या फिर सोयाबीन खा रहे हो, दाल खा रहे हो, तो उसका पोर्शन इतना होना चाहिए। सेकेंड इज फैट्स। फैट्स इज़ इम्पॉर्टेंट बट फैट्स का जो अमाउंट है और जो क्वांटिटी है वो थोड़ा सा मीडियम रहना चाहिए। तो आप 2 फिंगर साइज रख सकते हो। ज़्यादातर लोग 1 फिंगर साइज बोलते हैं कि इतना ही फैट्स लेना चाहिए। जैसे कि ऑयल, ठीक है, 1 स्पून या फिर 1.5 स्पून। बटर ले रहे हो तब भी आप इस इतना जितना है उसके हिसाब से आप स्कूप अप कर सकते हो। फाइबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको माइक्रो न्यूट्रिशन फिल अप करने के लिए हेल्प करते हैं। माइक्रो न्यूट्रिशन का मीनिंग यही है कि मिनरल्स, जो मिनरल्स होते हैं, वाइटामिन होते हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई जितने भी होते हैं वो आपकी सब्जियां मतलब फाइबर से हेल्प करते हैं। फाइबर का साइज इतना होना चाहिए जितना आपका ये हाफ ऑफ द पाम यूज़ हो रही है, उतना होना चाहिए फाइबर्स। तो आपकी बॉडी में इंडाइजेशन भी ज़्यादा नहीं होगा और आपकी बॉडी अच्छे से रिपेयर कर पाएंगे। लास्ट इज़ द कार्बोहाइड्रेट, जो बहुत लोग बहुत ह्यूज अमाउंट में और ह्यूज क्वांटिटी में लेता है बिकॉज वो फीलिंग होता है। पर एक चीज़ ध्यान रख सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, उसके बाद आपको वापस भूख लगती है, वो फिल अप नहीं करते। प्रोटीन विल ऑलवेज फिल अप योर बॉडी एंड इट विल गिव यू लेस हंगर, मतलब आपको ज़्यादा जल्दी भूख नहीं लगेंगे। कम से कम जैसे अगर आपने कार्बोहाइड्रेट लिया तो आपको कम से कम 1 से 2 घंटे में भूख लग जाएंगे, लेकिन प्रोटीन विल कीप यू फुल फॉर 3 to 4 आवर्स एंड इवन मोर देन डेट एज वेल। आपको मुट्ठी भर लेना पड़ेगा, मतलब आपको कार्बोहाइड्रेट का जो अमाउंट है, क्वांटिटी है, मुट्ठी भर, मतलब अगर आप कोई ऐसे कॉर्नफ्लेक्स ले रही हो तो मुट्ठी भर जितना आ रही है वही आपका साइज होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। कार्बोहाइड्रेट इज़ वेरी नेसेसरी इफ़ यू आर वर्किंग आउट, वो आपको एनर्जी देंगे, घूमने फिरने के लिए फ्यूल रखेंगे। द नेक्स्ट मिस्टेक आई डिड व्हाइल स्टार्टिंग माई फिटनेस जर्नी वाज टू डू मोर कार्डियो। आई स्टार्टेड डूइंग मोर कार्डियो, केप्ट माई सेल्फ स्टार्व्ड। कार्डियो ने मेरा वेट लॉस नहीं किया। इट विल ओनली हेल्प यू in balancing your weight, but it will never ever help you in losing fat percentage. Cardio will allow your body to store fats more. एक मसल का लेयर रहता है, एक फैट्स का लेयर रहता है। तो अगर आप कार्डियो करते जाओगे तो आपका जो मसल है ये ऐसा कम होता जाएगा और फैट्स का लेयर को चांसेस मिलेगा आने के लिए, तो उसकी वजह से आपका वेट गेन होगा रेदर देन लूजिंग वेट। सो हियर इन दिस वर्कआउट एज यू कैन सी दैट मैं ज़्यादा कार्डियो नहीं कर रही हूँ, सो आई विल डू सम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मैं बेनिफिट्स बता देती हूँ। सबसे पहले, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग विल इंक्रीज योर मेटाबॉलिज्म, इट विल ऑल्सो इम्प्रूव योर स्लीप क्वालिटी। अगर आप कार्डियो करोगे इंस्टेंटली आपका कैलोरी लॉस होगा, ठीक है। अगर आपको लगेगा कि ठीक है अभी मैं 200 ग्राम मुझे कम करना है, तो आप बहुत इंटेंस कार्डियो कर रहे हो, आपका 100 to 200 ग्राम्स कम होगा। लेकिन अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपको अगर पता नहीं है, आप जब सोते हो तब आपका वो बर्न होता है और वो 100 to 100 नहीं, कम से कम 300 to 400 कैलोरीज बर्न करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको बस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही करना है, यू हैव टू डू बोथ ऑफ देम। तो मेरा एक सीक्वेंस रहता था कि हमेशा मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पहले करके उसके बाद मैं लो पेस कार्डियो करती थी। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से ऑलरेडी मेरा कैलोरी बर्न होके रखा है, ठीक है, उसके साथ मैं एक्स्ट्रा बर्न ऐड कर रही हूँ, वो भी लो पेस कार्डियो। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आप टारगेट कर सकते हो आपके जो चेस्ट मसल्स है, चेस्ट के वर्कआउट कर सकते हो। हर वर्कआउट का आपका 2-2 वर्कआउट कर सकते हो, और मैं अपने वर्कआउट में भी कर रही हूँ, चेस्ट के मसल्स टारगेट कर रही हूँ, साथ में उसके बाद में कर रही हूँ बैक के वर्कआउट। बैक वर्कआउट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन हैविंग गुड पोस्चर। देन आई एम डूइंग लोअर बॉडी वर्कआउट, जिसमें मैं अपना ग्लूट्स वर्कआउट करती हूँ, एंड देन आई डू माई लेग्स वर्कआउट एज वेल। ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट मैं अपने जो शोल्डर्स है वो भी करती हूँ वर्कआउट, बिकॉज ऐसा होता है कि हम अपना अपर बॉडी छोड़ देते हैं ज़्यादातर वर्कआउट करने के लिए।
उसकी वजह से ही आपको ज़्यादा नेक पेन नहीं होगा, आपकी बैक पेन कम होंगे और फैट्स भी आपका कम होते जाएंगे। आप थोड़ा सा आर्म्स के वर्कआउट भी कर सकते हो। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड ए फीमेल कि आर्म्स के वर्कआउट कर सकते हो, बट यू कैन यूज लेस वेट्स एंड मोर ऑफ द रेपिटेशन, जिसकी वजह से आपको एक फेमिनाइन बॉडी मिलेंगी रेदर देन हैविंग ए मैस्कुलिन बॉडी, जो हर फीमेल प्रेफर नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको हैवी वेट्स ही उठाना है, अपने हिसाब से आपका जो भी नेसेसिटीज है, यू कैन यूज लाइटर वेट्स in order to have a feminine body, plus also lose fats as well. Stretching is very important after your workout because स्ट्रेचिंग की वजह से ही आपकी बॉडी के जितने भी सोर मसल्स है, आपके बॉडी में जितने भी पेन है, वो रिलीव होता है और आपकी बॉडी को ज़्यादा टाइम मिलता है, जगह मिलता है रिकवर करने के लिए। तो अगर आपको घर पे ही कार्डियो करनी है और अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो आप शाम को हल्का सा वॉकिंग करने जा सकते हो। सो हियर आई एम गेटिंग रेडी फॉर माई वॉक। तो आई हैव स्टार्टेड वॉकिंग एज वेल इन द इवनिंग बिकॉज विंटर डेज आर एंडिंग एंड समर डेज आर अराइविंग, तो उसकी वजह से ठंडी कम है, तो आई कैन गो फॉर ए वॉक इन द इवनिंग। आई कैन गो फॉर अराउंड 20 to 25 minutes. थर्ड मिस्टेक दैट आई डिड इन माई फिटनेस जर्नी इज टू स्लीप लेस। ये सब कनेक्टेड है। अगर आप कम खाओगे, ठीक है, और ओवर ट्रेन करोगे अपने आप को, कार्डियो करते रहोगे, कम खाओगे, तो आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि आपका बॉडी सर्व कर रहा है और डायरेक्टली वो आपकी ब्रेन को सिग्नल दे रहा है कि योर ओनर इज नॉट फीडिंग यू वेल एंड नॉट ट्रीटिंग यू प्रॉपरली। तो बॉडी ऑलरेडी माइंड को सिग्नल देता है कि नाउ यू नीड टू स्ट्रेस अप, आपको नींद नहीं आएगी और भूख लगते रहेंगे। ऑफकोर्स भूख लगते रहेंगे तो नो वन कैन गेट स्लीप, यू नो। मुझे तो नींद नहीं आती है जब भी मुझे भूख लगती है, और मेरा तो ऐसा होता है कि आई ईट कार्ब्स ड्यूरिंग नाइट टाइम सो दैट आई कैन गेट वेरी गुड एंड साउंड स्लीप। सबका नहीं होता है ऐसा, प्लीज डू नॉट ट्राई दिस, अलग अलग होता है। आप दिन में खाया करो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा। एक ह्यूमन बींग को कम से कम 6 to 7 आवर्स मिनिमम स्लीप रहना चाहिए और 8 to 9 आवर्स मैक्सिमम स्लीप रहना चाहिए। तो इसका ये बेनिफिट्स है कि अगर आप अच्छे से नींद लोगे, आपका डाइजेशन अच्छा होगा, आप सुबह उठ के अच्छे से फ्रेश हो पाओगे। तो इसकी वजह से नींद बहुत ज़रूरी है। अगर आप नींद नहीं लोगे तो आपका बॉडी प्रोसेस नहीं कर पाएंगे डाइजेशन को, और जितने भी आपका खाना है वो आपकी बॉडी में फैट्स के हिसाब से स्टोर हो जाएंगे। हेल्प्स इन बैलेंसिंग योर हार्मोन्स एज वेल। खुद को बिजी कैसे रख सकते हो, या फिर आप कुछ क्रिएटिव कर सकते हो, या फिर अपना नोट्स लिखो। आपका ऑफिस आवर्स भी होता है और अगर आप घर का काम भी कर रहे हो तब भी आप थक जाओगे। तो जितना हो सकता है आप अपने माइंड को ऑक्यूपाइड रखो ताकि आपको रात को अच्छा साउंड स्लीप रहे। और अगर आपको रात को नींद नहीं आ रही है, जिसको इंसोम्निया की इश्यू है, अच्छे से मेडिटेशन करो। मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो द फोर्थ मिस्टेक एवरी पर्सन डज इज टू सेट अनरियलिस्टिक गोल। ओके, इसके बारे में अगर बताऊंगी, मैंने इतने क्लाइंट्स आज तक मैंने हैंडल किया है, इतने क्लाइंट्स को मैंने ट्रेन किया है। एवरी क्लाइंट हु स्टार्ट्स देयर फिटनेस जर्नी वो यही बोल के आते हैं कि मैम मुझे 1 महीने में 10 किलो कम करना है या फिर 6 किलो कम करना है। दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। वो आपको डिपेंड करता है। अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है, जैसे डायबिटीज हो, थायराइड हो, या फिर पीसीओएस हो, पीसीओडी है, तो सेटिंग रियलिस्टिक गोल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपकी बॉडी को टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई क्लास पे जा रही हो, नया क्लास पे जा रही हो, इफ यू आर स्टार्टिंग ए न्यू कोर्स, आप अगर कोई भी किताब पढ़ रहे हो बिगिनिंग में, तो आप एक ही दिन में या फिर 1 घंटे में या फिर आप 10 मिनट में उसको पढ़ के खत्म नहीं कर सकते हो। कोई भी चीज सीखने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए आपको वो चीज को टाइम देना होगा और उसको धीरे धीरे करके आपकी माइंड को अडॉप्ट करने के लिए टाइम देना पड़ेगा। और मेरे क्लाइंट्स ने ये भी बोला हुआ है कि मैम मेरा बस 2-3 किलो ही लूज हुआ है, और जो मेरी नेबर है उन्होंने भी सेम प्रोग्राम लिया हुआ था लेकिन उनका 7 किलो कम हो गया। हाउ इज इट पॉसिबल? एवरी बॉडी टाइप इज डिफरेंट, ठीक है। आपका जेनेटिक्स मैटर करता है, आपके मेटाबॉलिज्म मैटर करते हैं, आप क्या खा रहे हो, आप कैसे सो रहे हो, आपका लाइफस्टाइल, सब चीजें मैटर करते हैं आपका वेट लॉस के लिए, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द फिफ्थ मिस्टेक दैट आई मेड ड्यूरिंग माई फिटनेस जर्नी इज टू चेक माई वेइंग स्केल एवरी डे। एकदम नहीं करना है। इट्स लाइक नो 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 नो, डू नॉट चेक योर वेट एवरी डे। तो आपने अपना फिटनेस जर्नी शुरू किया तो उस टाइम सबसे पहला दिन आप अपना वेट चेक करो, ठीक है। उसके बाद आप 1 हफ्ते के बाद वेट चेक करो। और इसका भी एक डिफरेंस है, आप हर दिन भी चेक कर सकते हो अगर आप वो इंसान हो जो ज्यादा ओवरथिंक नहीं करते हैं और जिसको उससे इफेक्ट नहीं होता है। तो ये एक अच्छी चीज है कि अगर आप हमेशा आपका वेट चेक कर रहे हो तो आपको अपना प्रोग्रेस पता चलेगा हर दिन को, तो आप नेक्स्ट डे को उसको अच्छे से यूज कर सकते हो कि मैंने आज अगर
चावल ज़्यादा खाया और मेरा इतना ग्राम इंक्रीज हुआ तो मैं नेक्स्ट डे को थोड़ा कम खाऊंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है सबके साथ, क्योंकि वो डायरेक्टली आपके माइंड को इफेक्ट करता है। आपको ऐसा लगता है कि ओहो मेरा वेट गेन हो गया नेक्स्ट डे को। इसलिए मैं बोलती हूँ सबको, जितने भी क्लाइंट्स हैं मेरे, उनको बोलती हूँ कि वेट चेक हमेशा हफ्ते में 1 या 2 बार ही करना चाहिए। ऑलवेज चेक योर वेट इन द मॉर्निंग आफ्टर गेटिंग फ्रेश एंड अप। अगर आप अच्छे से फ्रेश नहीं हो पाओगे, दैट मीन्स आपका कॉन्स्टिपेशन होगा, तो आपको वेट थोड़ा कम दिखेगा पर स्टेबल दिखेगा। So this is it for today's vlog and today's video. I hope you guys liked it and also find value in it. So in today's dinner I'm making some fish which is rich in fats as well as omega-3. So yes, I am finishing off my dinner with rice and some fish and some vegetables as well. And yes, thank you so much for supporting me and staying connected with me. I'm going to see you in another vlog and another video. Thank you so much and bye bye.